let's get started. This is video number 2 in this series of videos where, friends, we are going to look at CFA Level 1 syllabus and we are going to deep dive into individual topics in this syllabus. And I am going to give you a flavor, friends, of what this particular topic is all about. And also I am going to give you a flavor of why this topic and the elements which are covered in this topic, why are they taught to you, uski significance kya hai, so that you clearly know that why CFA has a particular topic or a course content. Because as I keep telling you, friends, that CFA is a very practical course. इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाबर, हुमायूं की तरह है, जिसका इतिहास के लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए यूटिलिटी है, बट आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. ऐसा नहीं होगा CFA के लिए. And hence, in these video lecture series, where I am deep diving into individual topics which are part of CFA Level 1 syllabus, I am going to also give you a why of what that topic is covering. So, friends, quick recap for those who have been following this video lecture series. This is, video number 2 in this entire series. In the first video, we have covered quantitative methods. If you have not watched this, Nitin, who is my content head, I will ask him to put the link of the video where we have deep dived into topic number 1, which is quantitative methods. Please go to that video and check it out. Today, we are going to look at topic number 2 of this 10 topics which are there in CFA Level 1. Topic number 2 is economics. Friends, as I told you, also we will ensure that you have to go through this entire syllabus in this order, because there is a sequence. The sequence has a screenplay, or the sequence will ensure that what you learn in topic 1 is being covered in topic 2, is related in topic 3, etc. So that way, if you follow this order, that would ensure that you are following the screenplay properly, so that things fit in your head very logically, right? So economics comes under topic number 2. In your sequence of preparation, you should go through economics as your second topic for preparation. It has 6 to 9% weightage in your exam. Overall in exam, as I keep telling you, there will be 90 questions in the morning session, 90 in the evening session. So net 6 to 9% का मतलब हुआ कि out of 120 question, you can assume that at least 12-13 questions will come from economics topic. Okay. So these are the 10 topics. You can, of course, pause your screen and go through these 10 topics. We will, in this video lecture series, deep dive into each of the topics. Today, we are deep diving into economics, right? But this is the sequence in which you should go through these topics when you are preparing your CFA Level 1 exam. And in case you are preparing it with us, we will teach you the entire syllabus in this sequence only, so that your building blocks are stacked up very logically. So this is our focus for today. Friends, do watch this video till the end, because in the end, I also have a Q&A session where just aspirants like you, they have asked us a lot of questions. You can also ask these questions. The link for posting these questions is in the description, or you can check out our first comment, which is pinned in this video, right? Through either of the ways, there is a Google form. You can fill that, and in one of the videos, I'll pick up those queries. But do watch this video till the end, so that you have this Q&A session also covered. It will also answer a lot of your queries which are there in your conscious and subconscious mind. Right? Lastly, friends, do like and share this video so that more people can benefit out of this entire awareness program. Right? Friends, before I get into economics topic and what are the sub-elements or what are the subtopics which are covered under economics, a lot of you have asked or keep asking me कि सर CFA मेरे लिए है कि नहीं है सर. आप हमेशा बोलते हो that anybody who has a logical bent of mind, CFA is for them. Is there a way through which I can evaluate if I have a logical bent of mind? So friends, I keep posing such logical questions to you. In my previous video lectures as well, I have posted such logical questions to you, so that you can understand कि आपका logical bent of mind है कि नहीं है, क्या CFA आपके लिए है कि नहीं. क्योंकि as I keep saying that CFA does not have any prerequisite in terms of you having done your financial statements or accounting in the past, or you having maths background in the past. You don't need to have any of these things. All it warrants of you is कि यार क्या आप logically सोचते हैं क्या, या भाई आप बस खाली 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में लगे हुए, आप रट्टा मारने में तो नहीं लगे हुए. तो यहाँ एक छोटा सा सवाल है, इसको देखिए. वीडियो के एंड में I will give you the answer, right? You can also post your answer in the comments. Would love to read that, right? So इस CFA पर भी, इसमें आज का जो लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए I am there in front of you and you are asking me a question. बट ऑफ कोर्स आई हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं आंसर कर सकता. तो अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फीस ऑफ CFA. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द फीस ऑफ CFA. और दूसरा सवाल है आपके दिमाग में, विच इज बेटर, CFA और MBA.
But given that I have limited time, you can ask me one of these questions only. So आप इन दोनों में से मेरे से कौन सा सवाल पूछेंगे? तो सोचिए, वीडियो के एंड में आई विल गिव यू द आंसर. प्लीज पोस्ट दिस आंसर in the comments as well. Would love to read that. So now, let's understand before we finally deep dive right into what are the subtopics in economics and why are those important for you. Remember this, friends, that sequence of topics is critical. इसीलिए मैंने जो 10 टॉपिक्स आपको बताए CFA लेवल 1 में हैं, प्लीज उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए. अगर तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस कोर्स विथ अस, तो एनीवेज वी विल टीच यू द टॉपिक्स इन दिस सीक्वेंस. बट अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट दैट and prepare it in that order. Because बहुत बार ये होगा that if you come from a CA background or commerce background, you would have this tendency to quickly jump onto financial statement analysis क्योंकि आपने accounting पहले कर रखी होगी, right? So now that is not the right way. Engineering students will jump onto something which they have done in the past, right? People who have economics background, they will jump onto economics topic because they would think यार ये topic तो मेरे को easy लगेगा. So please easy और hard या अपने self bias या background से मत जाइए. Go through that sequence because that sequence is the screenplay. Screenplay मतलब पटकथा, मतलब एक ऑर्डर में आपको चीज़ें पढ़नी है. अगर मैं आपको ऑर्डर में नहीं पढ़ाऊंगा या आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पिछले टॉपिक पे पढ़ाई हैं वो आपने पढ़ी नहीं, आप सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर गए क्योंकि आपको लग रहा है ये टॉपिक आपके लिए ईजी है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, राइट? सो फॉलो दैट सीक्वेंस. ऑल्सो फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट अनलाइक इंडियन एग्जाम, जहाँ पर कि आप हार्ड सब्जेक्ट छोड़ देते थे, आपको लगता था यार पास होने के लिए तो एक एवरेज मार्क्स ले आएंगे, राइट? जो हार्ड चैप्टर्स है उनको छोड़ दो, वैसा नहीं चलेगा. यहाँ पर एवरी टॉपिक यू नीड टू हैव मिनिमल मार्क्स. एक मिनिमम मार्क्स लाना ही है हर टॉपिक में. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आपको खराब लगता है, से फॉर एग्जांपल, देन यू विल से ओए यार टू हेल विथ इकोनॉमिक्स, आई विल गेट से व्हाटएवर 10% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, I will score very well in financial statement analysis or equity investment. That is my strength. I will score 90%, 95% marks in that and I will sail through. क्योंकि एवरेज में तो टोटल मार्क्स में मुझे एक एवरेज ही लाना है पास करने के लिए. ऐसा नहीं है, because CFA focuses very highly on you coming out of this program. If you are passing this exam, CFA takes a lot of pride कि यार मेरे कैंडिडेट्स जो पास कर रहे हैं इस एग्जाम को, they have well rounded knowledge, मतलब उनकी 360 डिग्री नॉलेज है, उनको सब आता है फाइनेंस के बारे में. तो वो उनके लिए बहुत अभिमान की बात है, वो CFA का ब्रांड ये पुख्ता करता है. सो दे विल नॉट लेट यू पास इफ यू आर फ्लंकिंग और इफ यू आर फ्लाउंडरिंग ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स वेरी बैडली. सो एटलीस्ट 60% रूल एक होता है कि एटलीस्ट 50-60% नंबर आपको हर टॉपिक में लाना है. उससे अगर कम ला रहे हैं तो दिक्कत. लास्टली, हैव अ लॉजिकल ओरिएंटेशन टू एवरी टॉपिक. रटने की कोशिश नहीं करें. इफ यू आर एनीवेज enrolling for our course, I will ensure that every topic, every concept, you are getting a lot of practical examples, ताकि कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं और जो रियल दुनिया में घट रहा है, उनका एक मैरिज करके आई शो यू कि यार ये कॉन्सेप्ट कैसे दुनिया में घटता है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाए. बट अगर आप हमारे साथ तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो अपने दिमाग की ओरिएंटेशन ऐसे ही रखिएगा, रटने की कोशिश नहीं करिएगा. ओके, सो अब देखते हैं क्विकली व्हाट इज द इकोनॉमिक्स सिलेबस एंड व्हाई आर दीज टॉपिक्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? सो पहली चीज जो आप यहाँ पढ़ोगे, इट विल बी फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स? देखो दोस्त, फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर में एवरी मार्केट इज डिफरेंट. लाइक देयर आर सम मार्केट्स लाइक द टूथपेस्ट मार्केट, राइट? इसमें बहुत सारी कंपनी है, राइट? यू नो, आपके पास कोलगेट है, ओरल बी है, पतंजलि है, पेप्सोडेंट है, पिनाका है. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स विच आर competing इन दिस मार्केट. बट जहाँ पर हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स की बात आती है तो वहाँ बहुत कम कंपनियां हैं जो हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स बना रही हैं. जैसे आईफोन है, जैसे आपका सैमसंग है, ये लोग हाई एंड फ़ोन्स बनाते हैं. तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम है. तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसी है, बहुत कंपटीशन है कि बहुत कम कंपटीशन है, कंपनियां कैसे अपना प्राइस डिसाइड करती हैं, कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट डिसाइड करती हैं, दिस taught to you, और कैसा कंज्यूमर बिहेवियर होता है, दिस इज taught to you in this part of economics. And why is this important? Because friends, tomorrow you are going to be senior advisor, senior analyst in your companies, जहां आप अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज को एडवाइस कर रहे होंगे इन सब चीज़ों पे, राइट? कि कल को आपसे क्लाइंट एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, आप जब उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन में जाते हैं, तो कंपनी आपसे ये तक पूछती है कि यार मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे किस मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, किस प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए, एटसेट्रा, राइट? सो हेंस इन दैट केस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अलग अलग मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन कैसे बिहेव करती हैं, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है. सेकेंड सब टॉपिक इन इकोनॉमिक्स इज फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? बड़ा सिंपल है यार. गवर्नमेंट जब भी देश में ग्रोथ लाती है, जैसे मोदी जी बोलते हैं भाई मैं बहुत ग्रोथ लाऊंगा,
आगे इकोनॉमी को आई विल टेक इट टू थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी एटसेट्रा। तो वो कैसे करेंगे? तो उनके पास कुछ लीवर्स होंगे। लीवर्स मतलब होता है यंत्र। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पैसा छाप देंगे, सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नाउ एवरीबॉडी इज रिच एंड नाउ बॉस पॉवर्टी इज गॉन। ऐसा तो होगा नहीं, वो तो भाई राहुल गांधी ही कर सकते हैं, राइट? तो भाई मोदी और जी जो है बहनों, जो आप वो तो अपना जानते हो, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, मतलब दिमाग लगा के काम करेंगे, ऐसा आलू डाल के सोना वाला तो काम करेंगे नहीं। तो हेंस यार वो क्या करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट के पास देयर आर सर्टेन लीवर्स और पॉलिसीज थ्रू विच दे इम्पैक्ट द इकोनॉमी एट लार्ज। एंड दोज पॉलिसीज, दो सेट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज में क्या हो सकता है कि यार रोड्स बनवाना है, आपका सर्टेन टैक्सेस में तब्दीली करनी है, एटसेट्रा, ऑल दीज। और इनको करने से इम्पैक्ट क्या आता है? क्योंकि देखिए आज तक तो आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है हाँ यार टैक्स कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, रोड बना दी, नहीं बना दी। आपको उसके पीछे क्या होता है? जब भी सरकार बाजार में 1 रुपया डालती है, तो वो 1 रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉपुलेशन पे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इकोनॉमी में? या सरकार जब 1% टैक्स एक्स्ट्रा लगाती है, तो वो कैसे रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है इकोनॉमी में, जिससे जीडीपी कितनी इम्पैक्ट होती है, एटसेट्रा। ये सारी समझ जो है वो आपको फिजिकल पॉलिसी में आएगी। और अब आप समझ ही गए होंगे दैट वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये आपके दिमाग में कभी नहीं रहना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो भाई ये टॉप, क्या करें भाई, भैया पास होने के लिए पढ़ना पड़ता। नाउ सच काइंड ऑफ स्टूपिड स्टेटमेंट्स प्लीज सर ये अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए रिस्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपको CFA जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है उसमें अच्छा करना है, तो आपको हर चीज का वाई पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्त टुमारो यू आर प्लानिंग टू बिकम एन एनालिस्ट, एनालिस्ट विल नॉट टॉक लाइक अ मोरन, लाइक समवन हु इज सेइंग कि यार मुझे तो पता नहीं, बस जो बोला जा रहा मैं कर रहा, राइट? आपको हर चीज का क्यों, विच इज वाई पता होना चाहिए। सो फिजिकल पॉलिसी क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि कल को आप या तो एज इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी एडवाइजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हो सकते हैं, पॉलिटिकल बॉडीज में हो सकते हैं। आजकल तो प्रशांत किशोर एंड अदर्स जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एडवाइजरी फॉर्म्स चलाते हैं, आईपैक, राइट, एटसेट्रा, ये सब में बहुत सारे एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्या तब्दीली आएगी, बाजार में कितना ऊपर नीचे होगा, वो सब आप फिजिकल पॉलिसी के अंदर समझेंगे। सिमिलरली टुमारो व्हेन यू आर इन योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स और एनालिस्ट रोल्स, इक्विटी एनालिस्ट रोल्स, इन पॉलिसीज से बाजार कितना भागेगा, कितना नीचे जाएगा, एटसेट्रा, वो आपको पता होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स, if you know this subtopic physical policy, you will be able to take better calls. Similarly, फिजिकल पॉलिसी का ही दूसरा छोर है मॉनेटरी पॉलिसी। तो याद रखिए यार, बाजार में मतलब कंट्री में दो बड़े बाहुबली होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। एक साइड होती है सरकार, जिसके पास लीवर्स क्या होते हैं, फिजिकल पॉलिसी के। दूसरी साइड देयर इज RBI और सेंट्रल बैंक, जिसके पास पॉलिसी, जिसके पास लीवर्स क्या होते हैं, पेच क्या कसता है या वो लीडर करता है, वो लीवर्स जो होते हैं वो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो बाजार में क्या इंटरेस्ट रेट चलेगा, कम करें या रेट कम काटें या रेट बढ़ा दें, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कंट्रोल होती है। खुद सोचिए, अगर रेट इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आपको पैसा बैंक से ईजिली मिल पाएगा। ईजिली मिल पाएगा तो आप ज़्यादा घर ले पाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा पाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे अपने इंटीरियर्स में, कार लेने में, एटसेट्रा। तो जब आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बूम होगी। बट उसका इल इफेक्ट क्या है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, सबके पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो आप पैसा फेंकते जाएंगे, बाजार में जो है दाम बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए इन बैलेंस करके कैसे चलना है वो कौन डिसाइड करता है? RBI। कैसे डिसाइड करता है? क्या लीवर्स होते हैं, किस लीवर से क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको इस सब टॉपिक में पढ़ाया जाता है, विच इज मॉनिटरी पॉलिसी। एंड अगेन इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्यों पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगेन यार, all your companies, all your clients, all the stocks and the assets which you will purchase for your clients and investors and for your companies, ये किस दायरे के अंदर होगा? एक कंट्री के अंदर ही होंगी ये सारी, राइट? और वो कंट्री में क्या मॉनेटरी पॉलिसी आ सकती है, उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, वो कैसे आप पता लगाएंगे? जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी आप एक एनालिस्ट बन पाएंगे जो इन चीज़ों का प्रभाव पता लगा पाएंगे। इसीलिए ये आपको पता होना जरूरी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यार, ये तो हो गई आपकी कंट्री की बात कि कंट्री में किस टाइप की मार्केट्स हैं, कंट्री में फिजिकल पॉलिसी क्या है जो सरकार चलाती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सिमिलरली व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज द इम्पैक्ट, राइट, हाउ यू शुड इवेल्युएट द impact of these policies on the stocks, on the investment, etc. All that you will come to know. Then of course यार, ये तो हो गई खाली डोमेस्टिक बात। बट एज यू नो, अब तो जो है वर्ल्ड इज वन मार्केट प्लेस, विच मीन्स वासुदेव बट कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज द एंटायर वर्ल्ड इज वन, राइट? तो इसका मतलब आज तो बहुत ग्लोबलाइजेशन हो गई, वर्ल्ड कनेक्टेड है। इसीलिए आज टू टुमारो योर क्लाइंट्स विल नॉट जस्ट बी present in India, but they will be present outside. A lot of your Indian companies will be dependent on what happens in the international markets. So ये सारी चीजें जो है आप इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स कैलकुलेशन इन दोनों में पढ़ोगे। जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस
अपना सॉफ्टवेयर अंग्रेजों को बेचती है, यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में। यहाँ से इनको डॉलर्स आते हैं। कल को डॉलर मजबूत होगा, अप्रिशिएट करेगा कि डेप्रिशिएट करेगा, उससे इनकी रेवेन्यू चेंज होगा। इमेजिन टुडे डॉलर इज ऑफ 80 रुपीज, तो दे हैव सोल्ड समथिंग फॉर 80 रुपीज, से दे हैव सोल्ड समथिंग, सम सॉफ्टवेयर फॉर $1। हाउ मच मनी डू दे गेट? 80 रुपीज, क्योंकि वो तो इंडिया में बैठे हैं तो वो तो सब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो इफ द डॉलर फर्दर गेट्स अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड मतलब और मजबूत हो जाता है। मजबूत क्या होता है, अप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, ये सब आपको इन टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो कल को अगर वो अप्रिशिएट होकर $1 बन जाता है 84 रुपीज, तो 80 रुपए के बदले दे विल नाउ गेट 84 रुपीज। तो उनका पीएनएल बेटर होगा, क्योंकि आप सोचिए खर्चे तो वही हैं जो वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पैसा दे रहे हैं, वो तो सेम है, उनकी सैलरी तो वही बड़ी नहीं। बट चूंकि रेवेन्यू ज्यादा आ गया, $1 ही आया। देखिए क्लाइंट अभी भी $1 दे रहा है, बट चूंकि इंडिया में आकर चूंकि एक्सचेंज रेट और ये जो उनका रुपीस में कन्वर्जन हुआ वो डॉलर का, पहले 80 बन रहा था, अब 84 बन रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ गया, कॉस्ट वही रहा तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो इससे उसकी प्रॉफिट बढ़ गया तो उसकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जानना कि इन्फोसिस कल को अच्छा करेगा बुरा करेगा, इसके लिए आपको ये एक्सचेंज रेट का ज्ञान होना, इंटरनेशनल ट्रेड का ज्ञान होना, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स दैट टुडेज सेशन गिव यू अ वेरी गुड फ्लेवर कि इकोनॉमिक्स टॉपिक which covers 6 to 9% weightage in CFA level 1 syllabus, what are the sub topics which are there, and not just that, ये सब टॉपिक्स क्यों है भाई, why are they there, how will it impact you in the real financial world when you will become an analyst, वो भी हमने समझा। क्योंकि दोस्त हमें ये जानना है कि हमारे इंडियन एकेडमिक सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ाता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत इम्प्रैक्टिकल है। हम आज भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अकबर, बाबर, कुतुब मीनार का हाइट, ताजमहल की चौड़ाई, यही कर रहे हैं भाई। और जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो कोई ये सब पूछता ही नहीं है, और हम नंबर ला रहे होते हैं 100/100, बाजार में उसकी कोई औकात ही नहीं होती। इसीलिए दोस्त CFA इतना तोड़ू सर्टिफिकेशन है कि यार जो आप यहाँ पढ़ोगे वही आपसे बाजार में भी पूछा जा रहा है, तो यू बिकम जॉब रेडी फ्रॉम day 1। एंड हेंस फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट एनी टॉपिक विच यू आर रीडिंग, स्टडी, राइट, यू शुड नो द वाई ऑफ इट। एंड मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको इन सेशंस के थ्रू उसका वाई हमेशा क्लियर करता हूँ, राइट। नाउ लेट्स कम टू Q&A. So Mohammad Samir, he has asked us that he has, after completion of CFA, he is saying that he is into audit and accounting jobs because he has a ACCA qualification. He is saying that after CFA level 3, to get charter, there is this caveat कि आपके पास 4 साल फाइनेंस का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो will his audit and accounting jobs be treated? Of course, yeah, Samir, your audit and accounting jobs very well qualify for finance experience, so don't worry about it. Then you have Pratik Gupta. He's saying that right now he's in Infosys as a system engineer. He wants to create a career in finance. Very nice, Pratik. आपको ये पता होना चाहिए that why would a career in finance be better than a career as a system engineer? Because Pratik, क्या होता है यार, ये सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जितने भी बैक एंड रोल्स होते हैं ना, इसमें यू हार्डली इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स। And because you don't interact with the clients, you are not the decision maker, you are the executor. Let me explain it. डिसीजन मेकर का मतलब होता है वो आदमी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझकर आप जैसे लोगों को बताता है कि भाई करना क्या है। तो आपको तो ये पता है दैट बाजार में जो बताएगा क्या करना है उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसकी ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट्स होती है वर्सेस समवन हु इज जस्ट जो सुन के खाली काम कर रहा है। तो इसीलिए टू गेट इनटू फ्रंट एंड रोल्स विच आर मोर इनरिचिंग एंड हैव मच बेटर ग्रोथ, उसके लिए आपको फाइनेंस एक बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी देता है, और वहां जाने के लिए CFA इज द राइट पाथ, राइट। सो प्रतीक, मैं आपको क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ, उसके 2 रीजन है। पहला यार, मैं भी किसी एक जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2007 to 2010 आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, so I have done my software engineering. I realized the same thing there, and that is why I took up CFA and cleared all the 3 levels to take up these front end roles. So similarly for you also that would be beneficial. Number 2, yeah, my sense is that you would abhi already your career would have started getting capped or will very soon get capped. So very important for you to get into this front end role. So this should become like a solid why of why you should do CFA, क्योंकि why के बगैर how कि कैसे तैयारी करनी है CFA की वो व्यर्थ है। तो I hope this gives you a lot of insight about why you should go for CFA. In case you want to prepare and know more about कि इसको prepare कैसे करना है, तो in the description here the complete link of our lecture series along with lot of demo sessions and how we teach the course in a very practical manner, how we also pick up Excels to explain you a lot of concepts so that you are job ready and not just exam ready. ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. Go and check it out and I'm sure you will like it and you can enroll it very quickly at a very nominal price.
नेक्स्ट अप वी हैव यशांक जैन. यशांक बोल रहे हैं कि MBA प्लस CFA इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर अस एंड हाउ कैन वी क्रैक CFA. BBA और MBA करते करते हम कैसे CFA कर सकते हैं. तो यार यशांक, यहाँ तो आई कैन गिव यू माई प्रैक्टिकल एंड माई रियल एग्जाम्पल. ड्यूरिंग माई MBA आई क्लियर्ड ऑल द 3 लेवल्स ऑफ CFA. तो अगर आपका सवाल ये है कि सर ये पॉसिबल है कि नहीं, यार मैंने किया है, तो मेरे में कोई ऐसे पर तो लगे नहीं थे यार कि मैंने कर लिया, आप नहीं कर पाओगे. यू कैन ऑलवेज डू इट. बस यार मेरे में एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी एट द स्टार्ट ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई CFA. मेरा यार वाई बहुत क्लियर था. मेरा वाई क्या था कि मेरा वाई था कि यार करो या मरो, विच मीन्स कि अगर मैं CFA नहीं करता तो मुझे ये बहुत क्लैरिटी आ चुकी थी अपने सीनियर से और काफ़ी सारे इंटरव्यूअर से बात करके कि अगर मेरे पास CFA नहीं है तो ये जो मैं सपने संजो के बैठा हूँ कि मैं फाइनेंस में करियर बना लूँगा, वो सारे सपने व्यर्थ हैं. वो खाली मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो कभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं होंगे. बिकॉज CFA इज दैट ब्रांड विच पुट्स यू इनटू दीज रोल्स एंड हेंस if you really have to get into these front-end finance roles, then CFA is the way to go. The important thing, Yashank, is that आपका why clear हो गया ना, तो फिर आप बहुत तेजी से उस पर पड़ जाते हैं. So hence, Yashank, check out my videos which are there on the YouTube. Check out this video where I'm answering this query. Get your why clear. और why clear हो गया ना, फिर इधर उधर नहीं देखना है. फिर प्लानिंग की आड़ में अपना समय नहीं बर्बाद करना है कि सर प्लान कर रहे हैं, आप 6 महीने बाद प्लान करके सोचेंगे कब देना एग्जाम. डोंट वेस्ट योर टाइम देयर. Quickly start your preparation. I can help you with that preparation through my lecture series. You can very well self-prepare for yourself. जिस भी तरीके से आपको करना है, बट तुरंत तैयारी शुरू कीजिए और तैयारी से आपको पता लग जाएगा कि आप कब देना चाहते हैं. 4 times in a year CFA happens. You can pick up any of the 4 slots and can give your exam. ठीक है? Wish you all the luck. Lastly, यार we have Komal. Komal says that sir confusion है. How should I decide that I am able to do CFA? So Komal, आज at the start of the lecture I had asked a question. Let me go to that question. और आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या आप CFA के लायक हैं या नहीं. लायक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट मैं बोलने की बड़ी कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार इसमें आपको एकदम नहीं सोचना है कि CFA के लिए मुझे मैथ्स चाहिए या कुछ और चाहिए एटसेट्रा. प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट. आपको खाली लॉजिकल माइंड चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दे डू CFA. अब उनका तो कॉमर्स का C भी नहीं पता होता, उन्होंने तो इंजीनियरिंग की होती है हमेशा, तो उनको तो कॉमर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, ये सब उनके लिए जो है नया होता है. दे आर एबल टू डू वेरी वेल. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम BCA एंड MCA बैकग्राउंड, जिनको ना कॉमर्स होता है ज़्यादा ना ज़्यादा उनका मैथ्स होता है, बट वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं. बहुत लोग होते हैं who आर वेरी वीक इन मैथ्स, दे आर एबल टू डू वेल. तो है क्या कि अगर आपका लॉजिकल माइंड है, आपको एक्साइटिंग लगता है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करना, तो CFA आपके लिए है. अभी ये सवाल देख लेते हैं. इस सवाल में हमने पूछा था कि आपके पास 2 सवाल है मेरे से पूछने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लिमिटेड टाइम है. तो इन 2 सवालों में विच क्वेश्चन विल यू आस्क मी. द फर्स्ट सवाल वॉज व्हाट इज द फीस ऑफ CFA. सेकंड सवाल वॉज विच इज बेटर सर, CFA और MBA. इन दोनों में से अगर आपको चॉइस होती एक सवाल पूछने की, तो आप कौन सा पूछते. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2. वाई? कि दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल क्वेश्चन है ना भाई. ट्रांजैक्शनल क्वेश्चन का मतलब कि आप गूगल करेंगे, आपको पहले आंसर में आंसर आ जाएगा. ये तो बहुत बड़ी चीज है नहीं. उसके लिए आप मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजुर्बे से क्या हासिल करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. तो ये तो आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट का बच्चा या गूगल में एक सिंपल क्वेश्चन टाइप करने से आपके पास आंसर आ जाएगा. तो आप तो मुझे वहां यूज करेंगे ना जहां गूगल शायद आपको आंसर ना दे पाए या उतना ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंशियल आंसर ना दे पाए. तो आप मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि यार सर ने तो CFA भी कर रखा है, MBA भी कर रखा है, इनका अनुभव जानते हैं, क्योंकि इनका अनुभव रियल है. गूगल में तो पता नहीं किसने क्या बोल रखा है, जबकि फीस तो इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे है, तो वो तो सच ही होगी, और उसमें एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं. राइट. इनफैक्ट एक्सपीरियंस तो पहले क्वेश्चन के लिए खराब है, क्योंकि मैं तो आपको फीस बताऊंगा 2010 में जब मैंने CFA लेवल 1 दिया था. आज की फीस बताने के लिए तो मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं. इसीलिए अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि मेरे से एक सवाल कौन सा पूछना है, तो आप सवाल नंबर 2 पूछेंगे. एंड इफ यू हैव ऑल्सो थॉट ऑफ आस्किंग मी क्वेश्चन नंबर 2, आपका वेरी वेल लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है. एंड प्लीज डोंट वरी फ्रेंड्स, दैट मीन्स यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. आपको कोई और प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए. ये सब लॉजिकल है. और अगर आप हमारे साथ तैयारी करोगे तो आई विल गिव यू सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाए. ठीक है. सो दैट्स इट फोक्स फॉर टुडेज सेशन. राइट. यू डू कैन पोस्ट योर क्वेरीज. वेरी सिंपल. लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है फ्री CFA मेंटरशिप फॉर्म का, और कमेंट में भी पहला पिंड कमेंट यही है. तो आप आइदर ऑफ द टू प्लीज पोस्ट द क्वेरी एंड आई वुड लव टू आंसर दैट इन माय सब्सिक्वेंट lectures. Okay. So thank you so much guys. Take care. Wish you all the luck and I will see you with new video in few days. Thank you. Bye-bye.